فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے مجلسی ارکان اسمبلی کوثر محی الدین، جعفر حسین معراج کے ساتھ مل کر شہر حیدرآباد کی مختلف عیدگاہ کا معائنہ کیا اور عید الاضحیٰ کی نماز کے انتظامات سے متعلق وقف بورڈ، GHMC اور دیگر محکموں کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ وقف بورڈ چیئرمین اور مجلسی ارکان اسمبلی نے عیدگاہ سال گنبد، عیدگاہ میرالم اور عیدگاہ مادنہ پیٹ کا دورہ کیا اور معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عید کی نماز کے سلسلے میں بہتر سے بہتر انتظامات کریں۔ اس دورے میں چیئرمین وقف بورڈ کے ہمراہ لیاقت حسین، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے عہدیدار اور پولیس، GHMC، R&B، واٹر ورکس اور برقی و دیگر محکموں کے عہدیدار موجود تھے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغرب مانسون کی تلنگانہ بھر میں توسیع ہو گئی ہے۔ اس ماہ کی 5 تاریخ کو محبوب نگر سے جنوب مغرب مانسون اس تلگو ریاست میں داخل ہوا، جس کی ریاست بھر میں توسیع ہو گئی۔ اس کے زیر اثر آئندہ 2 دنوں کے دوران اوسطاً تا شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ہر سال جنوب مغرب مانسون کی جون کی 12 تاریخ کے بعد آمد ہوتی ہے، تاہم اس مرتبہ جنوب مغرب مانسون کی جلد آمد ہو گئی، جس کے پیش نظر ریاست میں زیادہ بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ گزشتہ دنوں آصف آباد، منچریال، پیدا پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، رنگا ریڈی، وقار آباد، سنگا ریڈی، کاماریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول، وناپرتی، نارائن پیٹ اور جوگلامبا گدوال کے علاوہ شہر حیدرآباد میں بھی شدید بارش ہوئی۔ محکمہ تعلیمات نے تلنگانہ میں نصابی کتابوں کو واپس لینے کے احکامات جاری کیے۔ عہدیداروں نے اسکولوں میں پہلی سے 10ویں جماعت کے طلباء میں نصابی کتب اور ورک بک تقسیم کیے تھے۔ محکمہ تعلیم نے ان کا دیباچہ بغیر کسی رد و بدل کے شائع کر دیا تھا۔ اس کے متنازع ہونے کے سبب ان کتابوں کو واپس لینے کے احکامات جاری کیے گئے، تاہم یہ واضح نہیں کہ ان کتابوں کو دوبارہ کب تقسیم کیا جائے گا۔ حکومت کے اس قدم پر تنقید کی جا رہی۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکومت کے ان نامناسب اقدامات کی وجہ سے طلباء کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے فلسطینی بھائی بہن اور معصوم بچے ظالم اسرائیلیوں کے ظلم و تشدد اور نسل کشی کا شکار ہیں۔ معصوم بچوں، مردوں اور عورتوں پر وحشیانہ بمباری کی جا رہی۔ اسپتالوں، گھروں، اسکولوں اور انسانی خدمت کے مراکز کو زمین دوز کیا جا رہا۔ لاکھوں لوگ بھوک و پیاس سے تڑپ رہے اور گھروں کی چھتوں سے محروم، موسم کی سختیوں سے نبرد آزما ہیں۔ ہماری ملی و دینی حمایت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی، اخوت اور یکجہتی کا اظہار کریں۔ اقوام عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور ظالم اسرائیل کی بربریت اور سفاکی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے 12 جون 2024 بروز چہارشنبہ بعد نماز مغرب شام 7 بجے نمائشی میدان نامپلی حیدرآباد میں جلسہ عام منعقد کیا گیا تھا۔ جلسہ عام سے مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام، قائدین عزائم و دانشوران ملت نے مخاطب کیا اور صدائے احتجاج بلند کی۔ جلسے کی صدارت ڈاکٹر محمد خالد مبشر الظفر امیر حلقہ تلنگانہ نے فرمائی۔ مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی نائب امیر جماعت اسلامی ہند کا کلیدی خطاب ہوا۔ اس جلسہ عام میں کثیر تعداد میں حضرات نے شرکت فرما کر اپنی دینی حمایت اور ملی غیرت کا مظاہرہ کیا اور اس جلسے میں شریک ہو کر فلسطینی جیالوں کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیا۔ اس دوران خواتین کے لیے پردے کا الگ نظم تھا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن سچائی یہی ہے کہ شہر کے تینوں پولیس کمشنریٹس کے حدود کے چکن سینٹر سے اٹھائے جانے والا کچرا جو مرغیوں کے سر، پروں، پیروں، آنتوں پر مشتمل ہوتا ہے، روزانہ لاکھوں میں فروخت ہو رہا۔ مرغیوں کے علائش، سر، پروں، آنتوں اور پیروں کو حیدرآباد یا تلنگانہ میں نہیں بلکہ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کو غیر مجاز منتقل کرتے ہوئے اس کچرے کو لاکھوں روپے میں فروخت کیا جا رہا۔ مرغیوں کے سر، پروں اور پیروں کی
स्मगलिंग में कोई आम ताजिर नहीं बल्कि बदनाम जमाना रॉडी शीटर्स मुलविस बताए गए हैं। इन रॉडी शीटर्स स्मगलर्स को पुलिस की मुबैना तौर पर तायद व हिमायत हासिल रहती है। स्मगलिंग में मुलविस अनासर शहर के मुख्तलिफ चिकन सेंटरों से मुर्गियों के सर, परों और पैरों को ये कहते हुए उठा लेते हैं ये कचरा है। हम तो किचन सेंटर के मालिकान के काम को सहल बनाने के लिए ये कचरा हासिल कर रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि यही कचरे को आंध्र प्रदेश में लाखों रुपए मिलते हैं। जराये के मुताबिक इस कारोबार को कानून के दायरे में नहीं लाया गया और इस मामले में जेएचएमसी की मदाखलत भी नहीं, मगर ये गैर कानूनी तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा। सिटी पुलिस साइबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ चिकन सेंटर से यौमिया तकरीबन 5 कुंटल कचरा उठाया जाता है। चिकन सेंटर के मजदूरों को बराए नाम रकम देकर आलाइशों को उठाया जाता है। इससे स्मगलर्स को रोजाना लाखों रुपए की आमदनी होती है और इस कचरे को आंध्र प्रदेश मुंतकिल किया जाता है, जहां इस कचरे में बहुत कुछ मिलाकर मछलियों को बतौर फीड दिया जाता है, जिसे खाने के बाद मछलियां 15 दिन में बहुत वजनी और बड़ी हो जाती हैं। मुर्गी के इस कचरे में खंजीर की चर्बी मिलाई जाती है और उसे पोल्ट्री की मुर्गियों को भी बतौर फीड खिलाया जाता है। बताया जाता है कि शहर के तमाम चिकन सेंटर से कचरा उठाकर अंबरपेट मुंतकिल किया जाता है, जहाँ से कंटेनर्स के जरिए आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात को मुंतकिल किया जाता है। ये मुफ्त में उठाया गया कचरा लाखों रुपए में फरोख्त होता है। कचरा मुंतकिल करने वालों को पुलिस और रॉडी शीटर्स की पश्त पनाही हासिल रहती है, जबकि वेस्ट जोन का बदनाम जमाना रॉडी शीटर के अलावा साउथ जोन और ईस्ट जोन के 2 रॉडी शीटर्स भी इसका कारोबार करते हैं और वो रोजाना लाखों रुपए कमाते हैं। इसके अलावा मालूम हुआ है कि कुछ पुलिस स्टेशनों और टास्क फोर्स को भी मुबैना तौर पर मामूल दिया जाता है। ओहदे के हिसाब से किसी को 2 लाख रुपए तो छोटे ओहदेदार को 1 लाख रुपए अदा करना मामूल बन गया है। ये रकम 3 रॉडी शीटर्स ही फराहम करवाते हैं। जराये ने मजीद कहा है कि जेएचएमसी को ये कचरे इकट्ठा करने के लिए टेंडर करना चाहिए। इस कचरे से भी लाखों रुपयों की हुकूमत तेलंगाना को आमदनी हो सकती है। इस सिलसिले में वजीर फाइनेंस कमिश्नर जेएचएमसी को गौर करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लेने के बाद अमरावती में सेक्रेटेरिएट को रोशनियों से सजाया गया। रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के साथ ही सेक्रेटेरिएट को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया है। इसके अलावा ये मंजर निहायत ही खूबसूरत नजर आ रहा। सेक्रेटेरिएट के पहले ब्लॉक से 5वें ब्लॉक तक तमाम इमारतों और चमन को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट इंग्लैंड में वाक़ दुनिया की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से खिताब कर रहे। यूनिवर्सिटी ने पायलट को अपने तलबा और असातिज़ा से खिताब करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया था। वो 14 जून को हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे इंग्लैंड में 2 बजे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आनंदी मनी और माया ट्यूडर के ज़र एहतमाम एक मुबाहिसे में नौजवानों और असातिज़ा से खिताब कर रहे। फिल्म हम दो हमारे 12 की रिलीज पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट में फिल्म की रिलीज की इजाजत देने वाले मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा है और ट्रेलर में मौजूद तमाम मुकालमे डायलॉग्स मुकाबिल एतराज हैं। अदालत ने कहा है कि हमें यकीन है कि CBFC जो कि एक्ट के तहत एक कानूनी इदारा है
अपना फर्ज अदा करने में नाकाम रहा। अदालत उज़्मा ने बम्बई हाई कोर्ट में दाखिल करदा दरख्वास्त की मुकम्मल यकसोई तक फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम एतराज़ात बम्बई हाई कोर्ट के सामने उठाने के लिए फरीक़ीन को खुला छोड़ दिया गया। बशमुल कमेटी का इंतखाब करने के लिए CBFC को हिदायत दी गई है। काबिल-ए-ज़िक्र सुप्रीम कोर्ट में फिल्म हम दो हमारे 12 की रिलीज की इजाजत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त की समाअत हुई। बम्बई हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि ये फिल्म इस्लामी अकीदे के खिलाफ है और हिंदुस्तान में शादीशुदा मुस्लिम ख्वातीन की तौहीन करती है। जस्टिस विक्रम नाथ की सरबराही वाली बेंच ने इस मामले की समाअत की। मेडिकल ग्रेजुएशन की सतह की पढ़ाई के लिए 5 मई को मुनक़िद होने वाले कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट नीट 2024 के मामले में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ये ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके स्कोर कार्ड मनसूख करने का फैसला किया गया है और इसके साथ उन्हें दोबारा इम्तिहान देने के मुतबादिल भी दिया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इजाजत दी, जिसने कहा कि सिर्फ 1563 उम्मीदवारों के लिए इस तरह के दोबारा इम्तिहान की तारीख नोटिफाई की जा रही और नताइज का ऐलान 30 जून को किया जाएगा। अदालत उज़्मा ने अलिख पांडे की तरफ से 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस पॉइंट देने पर सवालात उठाने वाली अर्जी का निपटारा कर दिया। हज 2024 में आज़मीन की सहूलत के लिए सऊदी अरब की हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं और उन्हें हिदायत जारी की है। मनासिक हज का आगाज जुमा 14 जून से हो रहा। रवां साल हज के लिए सऊदी हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं जिनका मकसद आज़मीन हज को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करना है। वजारत हज ने हज सीजन के दौरान हिजामों को और भी सेहत ज़ाब्ते का पाबंद किया है, जबकि आज़मीन हज को हिदायत की गई है कि वो सिर्फ इजाजत याफ्ता हजामों से बाल वाज़रे के उम्रे की अदायगी और हज अराकीन की तकमील के बाद एहराम से बाहर आने से कबल हलक कराना, मर्दों के लिए सर के बाल मुंडवाना या 1/4 सर के बाल कटवाना और ख्वातीन के लिए भी 1 पूर के बराबर 1/4 सर के बाल कटवाना लाजमी होता है। हमास ने गजा जंग बंदी की तजवीज़ के लिए नए ख्यालात पेश करने से इनकार किया है। हमास ने दावों की तरदीद की है कि उसने गजा पट्टी में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता जंग बंदी की तजवीज़ पर नए ख्यालात पेश किए हैं। एक ज़राए ने ये इत्तला दी। हमास के एक करीबी ज़राए ने कहा है कि हमने जो कुछ किया वो साल्सों की जानिब से गुज़िश्ता 5 मई को पेश करदा अपने अज़म का इआदा करना था और हमने किसी नए आइडियाज़ या तजावीज़ पर बात नहीं की। ज़राए ने दावा किया है कि इस तजवीज़ में ऐसी शक़ें शामिल हैं कि अगर बातचीत के मुस्बित नताइज नहीं निकलते तो ये इसराइल को दूसरे मरहले के बाद दोबारा जंग शुरू करने की इजाज़त देती है। ज़राए ने कहा है कि हमने इसराइल को जंग दोबारा शुरू करने से रोकने और मुआहदे के मराहिल की शराइत पर अमल करने के लिए सरकारी बैनुल अक़वामी गारंटी की दरख्वास्त की है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।